یہ کچھ طلبا کو پڑھایا کرتے تھے، کچھ طلبا ان کے پاس پڑھتے تھے، یعنی علم کا درس دیتے تھے۔ حضرات بہت بہتر انداز سے پڑھایا کرتے تھے، بہترین ان کا انداز تھا، بڑے شاندار انداز سے پڑھاتے تھے۔ حضرات بچے بہت خوش رہتے تھے، ان کا علم مضبوط تھا، عمل مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا، پھر اللہ کے ولی تھے، شیخ المشائخ تھے۔ یہ میرے پیاروں میرے عزیزوں، بچے آتے تھے جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بچے کچھ تاخیر سے آئے، بچے کچھ دیر سے آئے، بچے لیٹ آئے۔ اللہ کے اس ولی مکرم نے بچوں سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے عزیزوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ لیٹ اتنا کیوں آئے ہیں، دیر سے کیوں آئے ہیں، تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ عزیزان گرامی میرے پیاروں، بچے گھبرا رہے ہیں، بچے ڈر رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بچہ استاد سے ڈرتا ہے تو جواب جلد نہیں دے پاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، بچے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ میرے پیارے بچوں، تم بول کیوں نہیں رہے ہو، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ تم اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو، اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ عزیزان گرامی بچے خود پھر کچھ نہیں بولے۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تم سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، تم گھبرا کیوں رہے ہو، تم پریشان کیوں ہو، تم متحیر کیوں ہو، تم حیرت میں کیوں ہو، تم پریشانی کے عالم میں کیوں ہو؟ ارے بولو کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے، دیر کیوں ہوئی؟ حضرات جب تیسری بار کہا تو بچوں نے بڑی دبی ہوئی آواز میں کہا حضور ہم راستے میں آ رہے تھے، ہم راستے سے آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عیسائیوں کا گرجا گھر پڑا، اس گرجا گھر کے اندر بہت بڑی بھیڑ تھی۔ عیسائی لوگوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو بنا رکھا تھا، ان کی عیسیٰ کی چھوی بنا رکھی تھی جو پتھر کی مورتی تھی۔ سارے کے سارے عیسائی اس کے پاس جا کر کے اس مورتی کی پوجا کر رہے تھے، اس مورتی کو چوم رہے تھے، اس مورتی کو چمکا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب تھے۔ ازدحام تھا، بھیڑ تھی، پر چمبے کا بھیڑ تھا۔ حضور ہم وہاں ٹھہر گئے اور ہم دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کرتوت کو دیکھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس طرح سے اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چوم رہے ہیں، کہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دیر ہو گئی، ہم دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر! یہ میرے پیاروں کیا سوال کیا جواب سن لیا آپ نے کہ لیٹ کیوں آئے، تاخیر سے کیوں آئے، دیر سے کیوں آئے؟ جواب یہ دیا کہ حضور اس لیے دیر سے آئے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیاروں میرے دوستوں، اللہ والے نے کہا مسکرا کر کے اچھا جب تم وہاں پر دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جب دیکھنے کے بعد جب تم پلٹے تو یہ بتاؤ کیا تم نے انہیں کچھ دیا یا تم نے ان سے کچھ لیا؟ یہ تو اور مجھے بتا دو۔ یہ میرے پیاروں میرے عزیزوں یہ تو عجیب سوال ہے کہ کچھ دینا کچھ لینا۔ وہاں کیا یہ لے سکتے تھے اور وہاں کیا یہ دے سکتے تھے؟ نہ تو وہاں سے کچھ لے سکتے تھے اور نہ وہاں کچھ دے سکتے تھے۔ لیکن میرے پیاروں یہ اللہ والا کہہ رہا ہے کہ کچھ تم نے ان کو دیا تھا یا تم نے کچھ وہاں سے لیا تھا؟ بچے کہنے لگے حضور ہم وہاں کیا دے سکتے تھے اور ہم وہاں سے کیا لا سکتے تھے؟ ارے ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، وہاں ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ والوں نے کہا، اللہ والے نے کہا اچھا نہ کچھ لیا نہ دیا۔ بچوں نے کہا حضور نہ لیا نہ دیا۔ میرے پیاروں اللہ والے نے کہا اچھا جب یہ بات ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ کس دن ہوا کرتا ہے یہ کام؟ کہا اتوار ہی کو ہوتا ہے۔ وہ اتوار ہی کا دن تھا۔ کہا جب اتوار کا دن آئے تو اے میرے پیارے بچوں مجھے بھی وہاں لے کے چلنا۔ سبحان اللہ! اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہا؟ مجھے بھی لے کے چلنا۔ عزیزان گرامی اب مسئلہ عجیب پیچیدہ ہو گیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ یہ اسٹیج پر علماء کرام کی
तो ये कहेंगे नहीं नहीं, ये तो जायज ही नहीं है। हे मेरे प्यारो, अगर मौलाना इमरान रईसी साहब से पूछा जाए फौरन इनकार करेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ ये नकीब अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि एक मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, ये मसला मसाइल को जानते भी हैं, फौरन इनकार कर देंगे। मौलाना सलमान अशरफी भी मना कर देंगे, मौलाना अकरम भी मना करेंगे, आबिद साहब भी मना करेंगे, मौलाना तारिक भी मना करेंगे, यानी जितने मौलाना यहाँ हैं सब यही कहेंगे नहीं, वहां जाना दुरुस्त नहीं है। सिर्फ यही स्टेज की बात नहीं है, अगले चले जाओ बरेली शरीफ खानकाह में जाओ, खानकाह वाले सब मना करेंगे कि नहीं जा सकते, सब मना करेंगे। लेकिन हजरात एक मसला ये भी है कि हर वली आलिम होता है, लेकिन हर आलिम वली नहीं। समझे नहीं? हर वली आलिम होता है, लेकिन हर आलिम वली नहीं हो सकता। आलिम बहुत होते हैं लेकिन वली नहीं। बोलो, लेकिन जो वली होगा वो आलिम होगा। अरे ये तो शेखुल मशाइख है, ये तो पीरे तरीकत भी है, ये तो रहबरे शरीयत भी है। अरे समझने की जरूरत है। हजरत निसार ये तो शेखुल मशाइख है। ये मेरे प्यारो, ये वो वलीए कामिल है कि जिसने बुखारी को पढ़ा है, जिसने निसाई को पढ़ा है, जिसने तिर्मिज़ी को पढ़ा है, जिसने अबू दाऊद को पढ़ा है, जिसने मिशकात शरीफ को पढ़ा है, जिसने मुअत्ता मोहम्मद को पढ़ा है, जिसने मेरे प्यारो मेरे दोस्तों शरे जामी को पढ़ा है, जिसने मुल्ला हसन को पढ़ा है, जिसने जलालैन को पढ़ा है, जिसने फिक़ह को पढ़ा है, जिसने मंतिक़ को पढ़ा है, जिसने नहव को पढ़ा है, जिसने निसाई को पढ़ा है, हे प्यारो जिसने कुल्लुल कुतुब मुअतबरा को पढ़ा है। लेकिन ये अल्लाह वाला कहता है कि जब इतवार का दिन आए तो मुझे बताना, मैं चलूंगा, तुम्हें साथ लेके चलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान मुफ्ती शरीफ अहमद नूर जिंदाबाद। मेरे प्यारो, यहां समझने की जरूरत है। बरेली का फतवा मिला कि गिरजाघर में जा नहीं सकते, इस स्टेज से फतवा मिला कि नहीं जा सकते। पूरी दुनिया के उलमा से फतवा लो, सारे उलमा कहेंगे गिरजाघर में जा नहीं सकते। अरे मेरे प्यारो, लेकिन ये शेखुल मशाइख कह रहे हैं, ये मेरे प्यारो कि जब इतवार का दिन आए तो बताना, तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। खुद भी जा रहे हैं, अपने तलवा को भी लेके जा रहे हैं। हजरत गिरामी कजिया समझ में नहीं आ रहा है, मामला समझ में नहीं आ रहा है। अरे दोस्तों, जो बुखारी का जानने वाला हो, जो निसाई का जानने वाला हो, जो तिर्मिज़ी का जानने वाला हो, जो दाऊद का जानने वाला हो, जो मिशकात का जानने वाला हो, जो हिकमत का जानने वाला हो, जो फलसफा का जानने वाला हो, जो बलागत का जानने वाला हो, जो तरीकत का जानने वाला हो, जो इनायत का जानने वाला हो, जो हकीकत का जानने वाला हो, जो करामत का जानने वाला हो, जो लताफत का जानने वाला हो। हे दोस्तों, वो ये कह रहा है कि मुझे ईसाइयों के गिरजाघर में लेके चलना, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बात समझ में आ रही है? समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। ये दोस्तों, कुछ शरीयत कुछ कह रही है। अरे बोलो, उलमा कुछ बोल रहे हैं। इतनी किताबों का जानने वाला, क्या उसने ये मसला नहीं पढ़ा? बात तो ये है, क्या उसने इस मसले को नहीं जाना कि कहता है कि मुझे लेके चलना। आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो औलिया इकराम की शान को नहीं मानते, जो कहते कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, और जो मुतारात औलिया को मिट्टी का ढेर कहते। मैं लहू के
जिंदा दिल मुसलमानों, इस्लाम के गैरतमंद शहजादों, आप उनके मुंह पे तमाचा मार के ये वाकया बता देना और उन्हें कह देना कि अल्लाह वाले ये देते हैं सबको, अरे जरा मांगने का हो इनसे डरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। तवज्जो, मैं अपने खानदान वालों से भी कहूंगा कि बहुत ध्यान से थोड़ी सी सुनिए, समझे नहीं जी। हजरत, ये क्या हो रहा है? ये क्या बात हो रही है? अरे मेरे प्यारों, आप मुताहिर है, आप सजदा हैरत में है, अरे अगली सोच में पड़ गई है, अगली हैरत में पड़ गई है कि एक अल्लाह का वली मरते आगा, मरते कलंदर, ये दोस्तों जो सारे मसाइल को जानता हो, जो जुगराफियाई इल्म रखता हो, जो बलागती इल्म रखता हो, जो इल्म सफर पर फाइज हो, लेकिन मेरे प्यारों वो ईसाइयों के गिरजाघर में जाने के लिए तैयार है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे प्यारों, हम ये भी नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अजीजान गिरामी हमें ये भी पढ़ने को मिल गया है कि उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने। यार एक बार कहे सुभान अल्लाह। मेरे छोटे छोटे बच्चों का होश को देखो, ये अभी बेहोश नहीं हुए हैं यार, ये अभी बाहोश हैं। कितने कीमती हीरे हैं ये, कितने कीमती मोती है ये। अल्लाह तुम्हें मुजाहिद बनाए, आमीन। अल्लाह तुम्हें मैदान का गाजी और मस्जिद का नमाजी बनाए, आमीन। है तो आप ही की नस्ल के बच्चे हैं। आमीन। अरे आप में कमाल है तभी तो इनमें जमाल है। हे मेरे प्यारों, तो आखिर समझ में नहीं आ रही है, तुम सोच रही है, लेकिन उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीवार के लिए। यहाँ तक के इतवार का दिन आ गया, अल्लाह अकबर। हे मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, इतवार का दिन आ गया, ना तो महिलाओं के स्टेज के उलमा ने जो इतराज किया इस पर भी नहीं गौर किया गया, बरेली के फतवे पर भी गौर नहीं किया गया, हजरात पूरी दुनिया के उलमा ने जो कहा उस पर भी गौर नहीं किया, लेकिन ये मर्द कैलेंडर आगे बढ़ गया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे गए इतवार के दिन, बोले हुजूर आज इतवार का दिन है। क्या बोले? आज इतवार का दिन है। बोले अच्छा इतवार का दिन है, चलो चलते हैं। क्या बोले? चलो चलते हैं। चलना शुरू हो गए। हजरात गिरामी, बच्चे चल रहे हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं। चलते 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 गिरजाघर के पास पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरजाघर के पास पहुंच गए। अजीजान गिरामी, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, शरीयत के तौर पर जवाब, शरीयत के तौर पर आवाज आती है, ये शैखुल मशाइख, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के जलीलुल कद्र वली, ये वली मुकर्रम, ये वली आजम, ये अल्लाह के वली, ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे कदम किधर को बढ़ रहे हैं, तुम्हारे कदम किधर जा रहे हैं? ये गिरजाघर है, ये यहाँ पर पूजा पाठ होती है, यहाँ ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, सरापा कुफ्र करते हैं। अरे आप किधर बढ़ रहे हो? ये मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, इस तरह से आवाज आई, लेकिन मेरे प्यारों, इस अल्लाह वाले का दिल बोल उठा। क्या दिल बोला? दिल ये बोला कि अरे आवाज देने वाले जरा गौर से सुन ले कि 360 फुट खानाए काबा में नसब थे, जाना मना था, लेकिन अल्लाह का पैगंबर आज़म मोहम्मद
जरा गौर का मकाम है। ये अल्लाह वाला गया, अल्लाह बहुत भीड़, आगे कोई नहीं बढ़ सकता। लेकिन हजरात, जब ये अल्लाह का वली पहुंचा, तारीख मुस्तनद है, किस्सा कहानी नहीं है, अल्लाह का वली पहुंचा, भीड़ छट गई। अरे यार सुना क्या बोलो, भीड़ छट गई, भीड़ फट गई। ये मरते आगा, मरते कलंदर भीड़ को चीरता हुआ मेरे प्यारों आगे बढ़ गया, यहाँ तक के मूर्ति के सामने जाकर के खड़ा हो गया। बोलो ना, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। हजरात गिरामी मेरे प्यारों, अब हम और आप तो जाने क्या सोच रहे हैं, मगर वहां क्या हो रहा है मैंने ये पहले ही कह दिया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवार का। बेशक सुभान, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरात, इससे पहले जो भी ईसाई जाता उसके सामने सजदे में गिर जाता, बेशक जो जाता उसकी पूजा में लग जाता। लेकिन वाह, ये मर्द आगाह पहुंचा, मर्द कलंदर पहुंचा। मेरे प्यारों, जाते ही मूर्ति से बोला, कह दो सुभान अल्लाह, ईमान डाला होगा। मूर्ति से जाकर बोला, उलमा की तवज्जो कहूंगा, ये कौन सी मूर्ति है, ये कौन सा ढांचा है, ये कौन सा ढांचा है जिसके अंदर कुप्पते शामा नहीं है, जिसके अंदर कुप्पते लामसा नहीं है, जिसके अंदर कुप्पते खान, जिसके अंदर कुप्पते मुद्रिका नहीं है, जिसके अंदर कुप्पते नाटका नहीं है। मतलब ये है, ये वो ढांचा है कि जिसके अंदर न सुनने की कुप्पत है, न देखने की कुप्पत है, न सुनने की कुप्पत है, न बोलने की कुप्पत है, न चलने की कुप्पत है, न हिलने की कुप्पत है, न हिलने की कुप्पत है, न टुलने की कुप्पत है। लेकिन मरते आगा, मरते कलंदर कह रहा है, मेरे प्यारों, मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलता है कि ऐ मूर्ति, क्या तू खुदा का बेटा है? अक्ल हैरत में है, तुम क्या सवाल कर रहे हो? ये ढांचे से सवाल, अरे जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, अरे बोलो, जो चख नहीं सकती, अरे मक्खी बैठी ही तो उड़ा नहीं सकती, उससे पूछ रहे हो कि तू अल्लाह का बेटा है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह का बेटा ही तो बनाया था इंसान को। बोलो ना, वही मूर्ति थी, कहा अल्लाह का बेटा है, अक्ल मुतहय्यर है, अक्ल हैरत में है कि जो अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी उड़ा नहीं सकती, वो क्या सुनेगी? बोलो ना, ज़हन कहता है, तमक्कुन कहता है, तफक्कुर कहता है, आइन कहता है, जुगराफिया कहता है, मिशन कहता है, आइन कहता है, किरदार बोलता है कि दोस्तों, जो पत्थर की मूर्ति हो वो बोल नहीं सकती है, वो देख नहीं सकती है, वो चल नहीं सकती है। ये तो हयूला बोल रहा है, हयूला बता रहा है, तमक्कुन कह रहा है, तरीका कह रहा है, आइन कह रहा है, मिशन कह रहा है कि वो बोल नहीं सकती। लेकिन मर्दे आगा कहता है, क्या तू ईसा का बेटा है, अल्लाह का बेटा है? मेरे प्यारों, जब ये कहा तो वही मूर्ति जो पत्थर की है, बोल नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती। हजरात, जब इस मर्दे कलंदर ने इतना कहा, क्या तू अल्लाह का बेटा है? और है ये मेरे प्यारों, जो भाग रहे थे, जो दौड़ रहे थे, जो चल रहे थे, जो फिर रहे थे, जो वहां खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, बोल भी रहे थे, ये मेरे प्यारों, जो झुक रहे थे, उठ रहे थे, जो झुक रहे थे, उठ रहे थे। अक्ल को ये
पूछना चाहिए था क्या ये अल्लाह का बेटा है? बे शक सुभान उनसे पूछना चाहिए क्या ये अल्लाह का बेटा है? लेकिन मेरे प्यारो, अगर उनसे पूछा जाता तो कलाम इतना दमदार नहीं होता। बे शक सुभान अल्लाह तो यार ना कहते या हाँ कहते या हूँ कहते या हाँ कहते या मुंह कहते या माँ कहते, पता नहीं क्या कहते, कजिया फिट नहीं होता। लिहाजा मरते आगा ने, मरते कलंदर ने उनसे ना पूछ कर उसी मूर्ति से पूछा कि बता क्या तू अल्लाह का बेटा है? ओहो, इतना कहना था। ये मेरे प्यारो, पत्थर की बनी हुई मूर्ति की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। सुभान अल्लाह जिंदगी से बोल जा भाई, यार बोल जा। सुभान अल्लाह क्या हुआ? आंसू टपकने लगे। आंसू गिरने लगे। ये आंसू कहां से आए? अरे ये आंसू कहां से आए जिसके जिस्म में ना पानी है ना खून है? अरे बोलो, ना रूह है, बोलो ना, ना लामसा है ना शामा है, कुछ नहीं है, ना नाटका है। ये आंसू कैसे? बोलो, ये आंसू कैसे? ये मेरे प्यारो, ये आंसू इसीलिए निकाले गए थे, इसीलिए निकलवाए थे जो ये कहते हैं कि अल्लाह वाले कुछ नहीं है। इनके मुंह में टमाटर मार के कह दो, अरे जिंदा तो जिंदा है अल्लाह वाला। अल्लाह ने अपने वलियों को वो मोहब्बत दी है, वो ताकत दी है कि जिंदा तो जिंदा है, मुर्दे को भी बुला देते हैं और मुर्दे को भी बुला देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह या गौस या गौस अल्लाहू अकबर। अकरम रजा साहब, शायर साहब, मैं तो समझा के बंद हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट है। अल्लाह बरकत, आमीन सुभान अल्लाह। ये हमें ये नहीं दे रहे हैं, उससे आदम दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। किसी की बस की बात नहीं है। रोड पे खड़े हो जाओ, एक और 10 रुपया मांगो तो नीचे मुंह करके चले जाओ, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं, उससे आदम की मोहब्बत में बेशक सुभान अल्लाह सुभान लुटा अल्लाह। रहे हैं, सुभान अल्लाह। और लुटाना चाहिए, अच्छी बात है। वो कहाँ कहाँ कितना गौसे आजम पे लोग लुटा रहे हैं, बेशक समझे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह लुटाते हैं और होना भी चाहिए। और ये चीज ये नहीं कि हम तुम्ही को बताते हैं। मैंने सबसे पहले एक बात बताई, ये जता नहीं रहा हूं कि मैं 2 जगह गौसे आजम की फादा करता हूं, एक इदारे में और एक अपने घर में। और सालाना ये नहीं कि एक बार कर दी वो पूरी जिंदगी कहता फिर, समझे नहीं? 2 तारीखें 11वीं की मेरे लिए कितनी अहम है ये मैं जानता हूं, बेशक समझे नहीं? उन तारीखों को कुर्बान करके फाता तो करवा लेगा, लेकिन तारीखें कुर्बान करके ऐसा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। बेशक अकलमंदरा इशारा काफी, अकलमंदों को इशारा ही बहुत है, समझे नहीं? तो हजरात, गौसे आजम के नाम पे आप क्या हम खुद सब लोग लुटाते हैं, बेशक जैसा जिसका मौका है उस तरीके से लुटा देता है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक और होना भी चाहिए। बहरहाल बात इधर चल रही है कि हजरात आंसू गिरने लगे, इसी में बस नहीं है, इसी यही बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये मूर्ति पटाख से गिर गई नीचे। बेशक सुभान गिर गई मूर्ति, जाओ सब हो जाओ, मूर्ति गिर गई, जोर से बोलो, गिर गई। ताजा हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारों, वली की मोहब्बत में बोल रहे हो ना, और वली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मूर्ति नीचे गिरी, गिरने के बाद इसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए। जी जी समझे? तवज्जो फरमाइए, सब अलग हो गया, पैर अलग, हाथ अलग, सर अलग, सारा इसका मुजस्समा अलग। बेशक समझे नहीं? नीचे गिरी और सब अलग अलग। यही पर बस नहीं है भाई, ये तारीख बताती है, मुस्तनद तारीख है कि जब इस मूर्ति का सब कुछ अलग अलग हुआ, सारे आज़ा अलग हो गए, सारे उज़्व अलग हो गए, हिस्से जिस्म के अलग हो गए, तो दोस्तों
زندہ باد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جتنا وہ میلہ لگا ہوا تھا، میلہ اور جھمیلا لگ رہا تھا جیسے ہے یہ بکریوں کا کمیلا. سمجھے جب اس نے دیکھا کرے جس کو ہم نے ارے خدا کا بیٹا مانا وہ نیچے الگ الگ ہو گیا، ریزا ریزا ہو گیا اور وہ الگ پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والا جو دین مدین لے کر کے آیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی طیب ہے، وہی ظاہر ہے، وہی حقیقت ہے. اے میرے پیارو، اتنا کہ جتنا میلہ تھا اور جو جھمیلا تھا سارے لوگ اکٹھا ہوئے اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی اور توبہ کر کے سب نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوئے اور بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان عقل تو حیرت میں تھی تو استاد نے کہا اے میرے شاگردو تم نہ کچھ لے کے گئے اور نہ دے کے گئے. ارے ہاتھ مان لگے دو نہیں دے کے گئے لیکن تمہارا استاد آج وہ دے کے جا رہا ہے کہ جو کمال و شرف رکھتا ہے جس کے ذریعے ان کی زندگی بھی سنبھل گئی ہے اور ان کی آخرت بھی سنبھل گئی ہے. لیکن عزیزان گرامی میرے پیاروں، اب مجھے یہاں کہنے کی اجازت چاہیے، اب کہنے کی اجازت چاہیے کہ یہ نساج یہ عام ولی ہے، ان کی ولی ان کی گنتی عام اولیاء میں ہے. ایک پیاروں، جب عام ولی کا یہ عالم ہے، جب عام ولی کا یہ مرتبہ ہے، جب عام ولی کی یہ شایان شان ہے، تو میرے پیاروں سر سرتاج الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاولاد پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر قطب سما قطب ربانی غوث سمدانی پیر نسانی عبدالقادر جیلانی محی الدین بڑے پیر صاحب غوث پاک عالم کیا ہو سبحان اللہ سبحان بولو نا ان کا عالم یہ ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اس بار کا یہ عالم ہے، اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ اس ولی اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الاولیاء کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے خود یہ کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اکرام کی قدموں پر ہے. سبحان اللہ تمام اولیاء اکرام کی قدموں پر ہے. اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سن لے تو وہ یہ کہے کہ ارے غوث اعظم صرف گردن میں معاملہ نہیں ہے بلکہ سر پر بھی ہے. علی کا دولہ سن لے، احمد رضا سن لے تو سڑک پر بریلی کی چوٹری کے ٹائم پر بیٹھ کر اس کو مستی میں اس طرح سے کہے وہاں کا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، وہاں کا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا چاہے گا تیرا. ارے اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اسی فرمان کو مفتی اعظم ہند سن لے تو وہ کہے تیرا حل ہے تیرا عرب غوث اعظم، تیرا حل ہے تیرا عرب غوث اعظم، عرب تیرا تیرا عجم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. ارے کہاں جاؤ رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کچھ نہیں دے سکتے. سبحان ارے میرے پیاروں، میرے غوث اعظم نے تو وہ دیا
कोई लेने वाला तो हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह क्या क्या ना दिया, चोरों को वली बना दिया, बोलो चोरों को वली बना दिया। और मेरे प्यारों जो दुनिया से चला गया उसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चोरों को अब्दाल बना दिया, अंधों को आंखें अता फरमा दी। बेशक क्या देंगे उससे आप? बेशक मगर मेरे प्यारों बस एक बात कह करके गुजर जाऊं तेजी से। हजरात, सरफिरों की हर दौर में कमी नहीं रही है, बेशक मक्कार अय्यार हर दौर में होते रहे, समझे नहीं? उससे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के ताल्लुक से मैं कहता हूं क्या एक रात चाहिए या 2 रातें चाहिए? अरे उनके महासिन, उनकी करामात, उनकी लताफात और उनके हुस्नो अखलाक, हुस्ने अखलाक, ये सारी चीजें बयान तो करो। गौसे आजम ने दीन में कितने इज्तिहाद किए, बेशक कितनी मुस्तहदियत की, कितनी मेहनत की। और आपका ज़ुहदो तका तकवाओ तहारत, अल्लाह अल्लाह, अगर इस पे बोला जाए तो बहुत वक्त दरकार है। बेशक इतना ही समझिए कि मेरे प्यारो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दीन मतीन के लिए अपने लहू को निकाल करके रख दिया। इसकी अजमत, इसकी इज्जत, इसकी बरतरी के लिए, इसकी तकवियत के लिए, इसकी कामयाबी और कामरानी के लिए बेशक वो कर दिया गौसे आजम ने जो किसी के बस की बात है। बेशक हमने नहीं ऐसा किया, लेकिन सरफिरों की कमी नहीं। गौसे आजम के दौर में भी कुछ ऐसे नालायक थे जो गौसे आजम की शान में गुस्ताखियां कर देते थे। वो बहुत मशहूर बात है, ये हमारे जमात के उलमा कहते होंगे, बताते होंगे आपको कि एक जमात ने प्रोपेगेंडा रचा कि ये गौसे आजम के दीवाने मानने वाले बहुत तारीफ करते हैं कि चोरों को वली कर देते हैं और बारात डूबी ही निकाल देते हैं, और कुतुबुल अफ्ताब हैं आप, गौसुल अब्बास हैं आप, और माशाअल्लाह पीरों के पीर हैं आप, मीरों के वीर हैं आप, रौशन जमीर भी कहते हैं। इस तरीके के एक जमात बात करती खुराफात हर दौर में हुआ ये। अरे हर दौर में अजीबी फितरे पैदा होते रहे ना, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है कि उसने हर दौर में शब्बीर पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बेशक तो हर दौर में शब्बीर भी पैदा होते गए। तो उस दौर में बहुत तेजी से बात कर दूं, उस दौर में सरफिरों ने एक प्रोपेगेंडा रचा। वो प्रोपेगेंडा क्या था कि ये कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने एक जवान को ऐसे ही मुर्दा कर देते हैं और उनसे कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ा दो। कहा ठीक है, ऐसा किया उन्होंने। एक जवान को तैयार किया, एक जवान को कपड़े मतलब चादर उड़ा दी मुर्दे वाली और चारपाई पे लिटा दिया। गौसे आजम के पास गए कि हमारा जवान मर गया, नमाज पढ़ा दो। उसको ये तय कर दिया था कि जब सलाम फेरे तो उठ जाइए, क्या कहा, तो उठ जाना, फिर हम तालियां बजाएंगे। गौसे पाक कैसे गौस हो, कैसे कुतुबुल अफ्ताब हो, कैसे गौसुल अब्बास हो, वैसे ही लोग कहते हैं रोशन जमीर हो। तुम्हें तो सामने का नहीं दिखाई दिया, रोशन जमीर कहां से होगा, ये कहेंगे। और ये मेरे गौसे आजम के पास गए तो गौसे आजम का ठीक है चलो जमात पढ़ाता हूँ, नहीं आई नहीं, चलो जमात पढ़ाता है। गौसे आजम हासदी हुसैनी है, अरे जरा समझो तो, आप क्या नहीं जानते। इसने कहा हो कि मैं दुनिया ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पे राई का दाना। बेशक तो इसका जवान छुट जाएगा क्या, जिंदा है या मुर्दा है, बोलो। आपने हल्की मुस्कुराहट की, हल्की का चुप में पढ़ाता हूँ, क्या बात है मेरे गौसे, सुभान अल्लाह। आप जलाली भी थे और जमानी भी थे। बेशक जब जलाल करते थे तो जिंदे को मुर्दा भी कर देते थे, बेशक और जब जमाल करते थे
तो मुर्दे को भी जिंदा बेशक कहा चलो मैं चलता हूँ पढ़ा देता हूँ आए। ये तो खुशी से आ रहा है कि ऐसा तुम नहीं हो जाएगा। अरे मैंने कहा अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी है, तुझे यही पता नहीं बेवकूफ ये कौन है, ये गौसुल अब्बास। अरे ये पीरों के पीर कुतुबुल अत्ताब जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम मुसर्रत दिया हो कि ए मेरे प्यारे मोहिद्दीन, आज मेरा कदम जब बुराक पे जा रहा हूं तो तेरी गर्दन पर है, कल तेरा कदम सारे औलिया की गर्दन। बेशक सुभान अल्लाह। और फिर ये मुस्तनद रिवायत से है, मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे प्यारों अपनी किताब फतावा फैजुल रसूल में लिखा है। जरा गौर करो, हमारे से बोल रहा हूं। तो सरकार ने जिसको इतना बड़ा मर्तबा दिया हो, ये कमबख्त बेवकूफ है, क्या बोल रहा है? चलो पढ़ा दो नमाज, बोले चल रहा हूं पढ़ाऊंगा। हालांकि चाहते तो कह देते नालायक मजाक करने आया, तेरा जबान भरा नहीं जिंदा है। लेकिन मेरे प्यारों ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है, बेशक सुभान अल्लाह। दिया जाता है जैसा मकाबिल हो उसी तरीके से मकाबिल जवाब दिया जाता है ना। तुमने कहा ऐसे नहीं, ऐसे जवाब दिया जाएगा, इसको ऐसे ही कह दिया जाएगा, तब तो कुछ असर नहीं होगा। अब जब ये कहता है मर गया है तो मारा ही जाएगा, तभी पता चलेगा कि हाँ जिंदे को मारने में क्या मिलता है, तभी पता चलेगा। मेरे और आपके गौसे आजम आ गए, हजरात चारपाई लगी हुई है, हजरात मुसल्ला बिछा दिया गया, मेरे और आपके गौसे आजम मुसल्ले पे हाजिर हो गए हजरात। और ये झूठ मूठ ऐसे ही सफे बांध लिया है, समझे नहीं, बांध लिया सब बेवकूफ ने, बेहया पेशनों ने, समझे नहीं, सफे लगा ली, लगा कितनी लगाएगा सब है। ये अल्लाह वाला है। उलमा अल्लाह वाले की तो बहुत बड़ी शान है, उलमा की शान में भी तौहीन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने खुद आला हजरत की किताब से महफूज किया है कि किसी आलिम दीन की तौहीन उसके इल्म को देखते हुए कोई कर रहा है तो ये कुफ्र में शामिल। इतनी बड़ी वो तो वली है कामिल। आया कभी कि चलो पढ़ा दो, बोले चलो चल रहे हैं, हमें क्या पढ़ाने, हम नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। आए गौसे आजम मुसल्ला बिछा हुआ है, चारपाई लगी हुई है, सब बंद गए, खड़े हुए, आपने कहा अल्लाह अकबर है। अब इधर झूठ मूठ बनने बात रही ऐसे ही, और इनके जहन में ये तो है ही जिंदा है कि जिंदा है माना तो जब जमान जिंदा ही रहेगा। और जब उसने समझाई दी था उसको कि जब चौथी बार ये कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तभी तो उठ जाइए फटाफट है। और जब उठे ना तभी हम जोर से गड़बड़ कर देंगे। हाय हाय कैसा बेवकूफ है ये। मेरे प्यारो, इसी को कहते हैं आरज़ू लेकर कोई निकलते क्यों हो, पैर जलते हैं तो आग पर चलते क्यों हो। ये नादान बेवकूफ कितने जले, इतना जले कि दिल को जल डाला, राख कर डाला दिल, नहीं समझ पाए ताज़ीम वली है, समझे नहीं। ये तो खैर वली की बात है, लोग तो नबी की ताज़ीम नहीं समझ पाए। खैर कोई बात नहीं है, गौसे आजम ने नमाज पढ़ा दी, एक सलाम, दो सलाम, तीन सलाम, चारों हो गए, दुआ करने लगे, वो उठा ही नहीं। क्या हुआ, बोलो बोलो, वो नहीं उठा। जब नहीं उठा तो बाप सटफटा उठा कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये तो उठ नहीं रहा है, ये तो उठ नहीं रहा है। सबने तो थोड़ा सोचा, बाप ने बहुत सोचा, क्योंकि वो बाप है और औलाद वाला ही जानता है औलाद क्या मोहब्बत होती है। कह तो गया बेवकूफ, आ तो गया जहालत में, लेकिन समझ नहीं पाया। अब जब नहीं उठा तो बाप का कलेजा फटा, आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर ये तो जिंदा था। मेरे गौस ने कहा नादाना अब्दुल कादिर ने अरे जिंदे की नमाज नहीं पढ़ाई है, मुर्दे ही की पढ़ाई है, और जब मुर्दे की पढ़ाई है तो मुर्दा कैसे जिंदा होगा। समझे,
اب تو میرے پیاروں سبحان اللہ ہاں توجہ فرمائیے، اے میرے پیاروں، غوث نے کہا مردہ ہے اور اعلان کیا، اے نادان، اگر تو نے زندہ لٹایا تھا لیکن یہ عبد القادر کبھی کسی زندے کی نماز نہیں پڑھاتا ہے، یہ مردے ہی کی نماز پڑھاتا ہے، اب یہ مر چکا ہے، اب یہ زندہ نہیں ہوگا، مر گیا، اب تو صبح قیامت ہی میں زندہ کیا جائے۔ باپ قدموں سے لپٹ گیا، بولا حضور گستاخی ہو گئی، معاف کر دی۔ حضور میرا تو زندہ تھا، تو وہ میرے غوث نے کہا لٹایا کیوں تھا؟ جب زندہ تھا تو کیوں لٹایا تھا؟ حضور گستاخی ہو گئی، معاف کر دیجئے آقا، معاف کر دیجئے اے غوث اعظم، میں مان گیا کہ واقعی آپ پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے میر ہیں، روشن ضمیر ہے، قطب صبا ہے، قطب ربانی ہے، غوث سمدانی ہے، پیر لاسانی ہے، عبد القادر جیلانی ہے، ارے محدثین ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، قدموں میں لٹے لپٹ گیا، معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، رحم آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ دل آپ کے اندر حسینی دل ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جب زیادہ گڑگڑانے لگا رحم آ گیا، رحم آیا، کہا چل اٹھ جا، مت گڑگڑا، پر ایسا مت کرنا، حضور کبھی نہیں، میرے غوث کو جلا لایا، چارپائی میں لات ماری، کہا کب تک لیتا رہے گا، قل بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ بچہ، وہ جوان جو زندہ تھا مردہ ہو گیا تھا، ایک ہی عبد القادر کی لاش سے پھر زندہ ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیاروں، ان سرفروں نے دیکھا کہ واقعی غوث کمال والے ہیں، سب دوست رونے لگے، بلبلا اٹھے اور کہا حضور معاف کر دو، واقعی آپ اللہ کے سچے ولی ہیں، سچے مچے ولی ہیں، آپ واقعی ولی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ ہو یا رسول، یا رسول اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ بے شک الحمدللہ ہم عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہیں، کہہ دو سبحان